Good morning, class. We are doing chapter second, animal world. So first, I am going to revise the previous lecture, and then I will discuss about the today's topic. And the today's topic is eating habit in animals. In previous lecture, we have discussed about body covering of animals. First of all, we have discussed what is a habitat. So what is habitat? The area where a particular animal live naturally is called a habitat. Area where a particular animal lives naturally, it is known as habitat. Means the living place of any animals. That natural surrounding or that living place is known as habitat. And there are two type of habitat: a terrestrial habitat and aquatic habitat. The living area which is on land, for example, forest, desert, polar region, mountains, is known as a terrestrial habitat. A terrestrial habitat. And the area inside the water, into the water, is known as aquatic habitat. Aquatic habitat include freshwater, river, lake, oceans. So these will constitute aquatic habitats. Then body covering of animal, we have learnt about body covering. So different animal having different outer covering, outer body covering. So like in lizard, in crocodile, in snake, there are scales. So outer body of crocodile and snakes and lizard having scales. So you can see this in this picture. Next is cell, outer hard covering. Some of the animal like tortoise, snail, turtle having a very hard outer covering that is made up of calcium carbonate, and it is known as cell. After that, we have discussed about fur. Many of the animal having a huge amount of hair on their body. So these hair are known as burr, like bear. Bear is having fur. Then feathers. Most of the birds having feather, which help them in their flight. So these are the topic which we have discussed in a previous lecture. So today's topic is eating habit in animals. So animals के अंदर कौन कौन सी eating habits होती हैं? So as we have already discussed in bridge course में भी ये इस तरह की terms हमने use किए हैं. So on the basis of their eating habits, कौन सा animal किस तरह का food eat करता है, तो हम animals को categorize कर सकते हैं. All living things need food to get energy, to grow and to stay healthy. जितने भी living organisms हैं, सभी को सर्वाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? फूड. और फूड से उनको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, और उसी एनर्जी से वो ग्रो करते हैं और वो हेल्दी रहते हैं. सो ऑल द लिविंग थिंग्स नीड फूड टू गेट एनर्जी. यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, व्हाई डू वी नीड फूड? व्हाई डू ए लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड? क्यों जरूरत होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, चाहे वो एनिमल है चाहे वो ह्यूमन बीइंग है, फूड की क्यों रिक्वायरमेंट होती है? टू गेट एनर्जी, टू ग्रो एंड टू स्टे हेल्दी. दिस इज द आंसर. एनर्जी मिलती है फूड से, उसी से हम क्या करते हैं? ग्रो करते हैं और हेल्दी रहते हैं. इसीलिए हमें फूड की रिक्वायरमेंट होती है. डिफरेंट एनिमल ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड. So there are so many different animals. They are eating different type of food. Based on their food habits, animal can be divided into three types, or we can say animal can be divided into three categories: herbivores, carnivores, and omnivores. Herbivores, carnivores, and omnivores. Herbivores means those animals which eat plants only. Means plant eating animals are called herbivores. Second, carnivores. Carnivores means those animals which are eating a flesh of other animals, or we can say flesh eating animal. Flesh eating animal known as carnivores. Omnivores, those animal which eat both
plant as well as flesh. So means they can eat plant, they can eat flesh of other animal known as omnivores. So herbivores means plant eating, ऐसे एनिमल जो सिर्फ प्लांट, ग्रास, ठीक है, वेजिटेबल्स, ये सब चीजें खाते हैं, हर्बीवोर्स. कार्निवोर्स जो दूसरे एनिमल्स का फ्लेश खाते हैं, मांस खाते हैं, वो क्या कहलाएंगे? कार्निवोर्स. ओमनिवोर्स दोज एनिमल विच ईटिंग बोथ, जो दोनों ही चीजें खाते हैं, प्लांट एज वेल एज फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स, जो प्लांट्स वगैरह, ग्रास वगैरह भी खाते हैं, और दूसरे एनिमल्स का जो मांस है, जो फ्लेश है, वो भी खाते हैं. इस तरह के एनिमल्स क्या कहलाएंगे? ओमनिवोर्स. दे आर नोन एज ओमनिवोर्स. So let's start. Herbivores. So you can see with the help of picture. So in picture, two animals are here: rabbit, cow. Rabbit and cow, they are grass eating and the plant eating animals. So that is why they are known as herbivores. Herbivores. So plant eating animal are called herbivores. So underline this: plant eating animals are called herbivores. Example are cow, goat, horse, rabbit, giraffe. तो जो एनिमल सिर्फ प्लांट खाते हैं, उनको हम हर्बीवोर्स कहते हैं. और इनके एग्जांपल है काउ, गोट, हॉर्स, रेबिट और जिराफ. तो आपको क्या करना है? पहले डेफिनेशन, देन एग्जांपल. So plant eating animal are called herbivores. Example are cow, goat, horse, rabbit and giraffe. तो यहाँ तक अंडरलाइन करना है, और इसकी डेफिनेशंस को आपने इस तरह से प्रैक्टिस नोटबुक में आप लिख सकते हैं, या इंपॉर्टेंट टर्म्स बना के भी आप अपनी नोटबुक के अंदर इसको लिख सकते हैं. दे हैव शार्प फ्रंट टीथ. अब जो हमारे जो सामने के जो टीथ होते हैं, ठीक है, जो सामने वाले जो टीथ होते हैं, जिसको हम कटिंग के लिए यूज करते हैं, किसी भी चीज को बाइट करना है, कट करना है, तो उन जो फ्रंट के जो टीथ होते हैं उनको हम बोलते हैं इंसीजर. इंसीजर. और वैसे भी सीजर क्या होती है? जो हमारी, जो काटने के लिए, कपड़े काटने के लिए हम यूज करते हैं, सीजर. तो जो सामने वाले जो हमारे फ्रंट टीथ है, वो क्या है? इंसीजर. सो इस तरह के जो एनिमल है, हर्बीवोर्स एनिमल, तो उनके जो फ्रंट टीथ है वो काफी शार्प होते हैं, काफी, किसी भी चीज को वो इजिली कट कर सकते हैं. सो दे हैव शार्प फ्रंट टीथ फॉर बाइटिंग, ब्रॉड एंड स्ट्रॉन्ग बैक टीथ, जिनको मोलर हम कहते हैं, और ग्राइंडिंग फूड. सो पहले फ्रंट टीथ से कट करते हैं, और फिर उनको च्यू करते हैं, चबाते रहते हैं. और जो एंड में जो टीथ होते हैं, उनको हम बोलते हैं मोलर. जो मोलर जो टीथ होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, उनकी जो अपर सरफेस है वो चौड़ा होता है, ब्रॉड होते हैं वो, और स्ट्रॉन्ग होते हैं. तो वो ग्राइंडिंग के लिए यूज होते हैं. जो हम जो भी जो फूड खाते हैं उसको चबाते हैं, वो चबाने के लिए, उसको ग्राइंड करने के लिए यूज होते हैं. सो फ्रंट में इंसीजर टीथ होते हैं, और जो बैक में जो हमारा जो माउथ है, इनसाइड ऑफ द माउथ, तो एंड में कौन से होते हैं? मोलार टीथ उनको बोलते हैं. द अंडर सरफेस ऑफ देयर फीट हैव हार्ड hooves to walk on various surface in search of food. जो उनका जो फुट का जो बिलो सरफेस है, जो फुट की जो नीचे की जो से है, वो काफी ब्रॉड होती है. hooves हम उसको बोलते हैं, ठीक है, काफी वो फ्लफी टाइप होती है, स्पंजी टाइप आप उसको बोल सकते हैं. टू वॉक ऑन वेरियस सरफेस इन सर्च ऑफ फूड, ताकि वो फूड को सर्च करने के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे इजिली मूव कर सके. तो इस तरह से हमारे क्या होते हैं? हार्बीवोरस एनिमल होते हैं. नेक्स्ट, कार्निवोर्स. कार्निवोर्स. कार्निवोर्स फ्लेश ईटिंग एनिमल आर कॉल्ड कार्निवोर्स. ऐसे एनिमल जो फ्लेश ईट करते हैं, दे आर ईटिंग फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स. तो फ्लेश ईटिंग एनिमल को क्या कहा जाता है? कार्निवोर्स कहा जाता है. दे हैव शार्प पॉइंटेड कैनाइन टीथ और टेयरिंग फ्लेश. अब उनके जो टीथ है वो कैसे होते हैं? कैनाइन टीथ होते हैं. कैनाइन मींस, यू कैन लुक एट द डायग्राम, यू कैन लुक इनटू द पिक्चर, एट द पिक्चर ऑफ टाइगर. सो जो साइड में जो टीथ है, पॉइंटेड टीथ, ये जो पॉइंटेड टीथ हैं, इन पॉइंटेड टीथ को हम क्या कहते हैं? हम कैनाइन बोलते हैं. और ये ह्यूमन बीइंग में भी होते हैं, ठीक है. तो जो हमारा लोअर जो और अपर जो, नीचे का जो जबड़ा है और ऊपर वाला, तो सामने के चार टीथ होते हैं
इंसीजर, और उन इंसीजर से नेक्स्ट आप देख सकते हैं नुकीले से दांत होते हैं, पॉइंटेड टीथ, और उन पॉइंटेड टीथ को कहा जाता है कैनायन। तो बेटा यहाँ पे नेम ऑफ टीथ भी आपके आ चुके हैं, जैसे कि फोर्थ स्टैंडर्ड में आपने पढ़े हैं कि 4 टाइप के हमारे पास टीथ होते हैं। बिल्कुल जो फ्रंट में होते हैं वो होते हैं इंसीजर, उनसे जस्ट नेक्स्ट जो वो जो पॉइंटेड नुकीले जो टीथ होते हैं वो होते हैं कैनायंस, उनके पीछे होते हैं प्रीमोलर, और सबसे एंड में होते हैं मोलर। तो ये 4 टाइप के टीथ होते हैं, ये ह्यूमंस के अंदर है। अब जिस तरह से कार्निवोर्स है, उनको क्या करना है, उनको दूसरे एनिमल्स का जो फ्लैश है उसको चीरना फाड़ना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उनके टीथ जो हैं वो पॉइंटेड होते हैं, काफी नुकीले और लंबे स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं। तो दे हैव शार्प पॉइंटेड, फ्लैश को टीयर करने के लिए, फाड़ने के लिए उनके पास पॉइंटेड कैनाइन टीथ होते हैं। दे ऑल्सो हैव स्ट्रॉन्ग लिम्स विद शार्प क्लॉव्स फॉर किलिंग अदर एनिमल्स। दे हैव स्ट्रॉन्ग लिम्स। लिम्स जो है उनकी, जो आर्म और जो लेग है, एक्चुअल में तो ऐसे एनिमल्स में लेग ही होती है, तो उनकी जो लेग है उनको लिम्स बोलते हैं। और उनके आगे काफी शार्प उनके जो नेल्स होते हैं, आपने देखा होगा कि जो नेल्स है वो ऐसे कर्व में होते हैं, मुड़े हुए। वो जो मुड़े हुए जो कर्व में जो नेल्स हैं, उनसे वो दूसरे एनिमल को किल करते हैं, मारने में हेल्प कर मिलती है उनको, तो उनको कहा जाता है क्लाउस। क्लाउस है वो काफी शार्प होते हैं, दे आर वेरी शार्प एंड पॉइंटेड एंड वेरी स्ट्रॉन्ग। तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग उनकी लिम्स होती हैं, पैर जो है वो तगड़े होते हैं, और उनके पैरों पे जो नाखून होते हैं उनको क्या कहा जाता है, क्लाउस। वो नुकीले होते हैं, दूसरे एनिमल्स को किल करने के लिए यूज करते हैं। So they have strong limbs with sharp claws for killing other animals. Example are lion, tiger, cat, eagle, and wolf. So these are the example of carnivorous animals. So what type of carnivorous animal are? They are flesh eating animals. ये दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं, तो ऐसे एनिमल्स क्या कहलाएंगे, कार्निवोर्स कहलाएंगे। अब इनकी क्या खासियत है, इनके जो टीथ हैं वो कैनाइन होते हैं, काफी शार्प टीथ होते हैं, ताकि वो फ्लैश को टीयर कर सके। और किसी दूसरे एनिमल को किल करना है तो जो इनके जो पैरों के जो पंजे हैं वो काफी शार्प होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, क्लाउस। दे हैव स्ट्रॉन्ग लिम्स, उनकी जो पैर हैं, उनकी जो लेग्स हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेग्स विद शार्प क्लाउस फॉर किलिंग अदर एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल लायंस, टाइगर, कैट एंड वॉल्फ। The third type of animal are omnivores. So omnivores, some animal eat the flesh of other animal as well as plant. कुछ एक एनिमल ऐसे होते हैं जो दूसरे एनिमल्स का फ्लैश भी खाते हैं और वो प्लांट्स भी खा सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ दूसरे एनिमल का फ्लैश ही खाएंगे, वो घास नहीं खा सकते, वो खा सकते हैं। तो इस तरह के जो एनिमल्स हैं वो क्या कहलाएंगे, ओमनिवोर्स। सम एनिमल दैट ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स as well as plants are called omnivores. They are called omnivores. Example are human beings. So we human beings belong to the category of omnivores. Bear, crow. ये जो एग्जाम्पल हमने लिए हैं, सभी एग्जाम्पल ऐसे हैं जो दूसरे जानवर का मांस भी खाते हैं और प्लांट्स के जो प्रोडक्ट है उनको भी खाते हैं। जिस तरह से एग्जाम्पल है ह्यूमन बीइंग, तो हम ह्यूमन बीइंग जो वो किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओमनिवोर। बहुत सारे इंसान ऐसे हैं जो दूसरे इंसानों का फ्लैश बिल्कुल भी नहीं खाते, दूसरे एनिमल्स का जो फ्लैश है बिल्कुल नहीं खाते। दे आर वेजिटेरियंस। वो क्या खाएंगे, वो प्लांट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इनके जो प्रोडक्ट है वही खाएंगे। बट बहुत सारे इंसान ऐसे भी हैं जो दूसरे जानवरों का जो मांस है, जो फ्लैश है वो भी खाते हैं। और जिस तरह से राइस है, ये फ्रूट हैं, या व्हीट है, गेहूं, चावल, ये चीजें भी खाई जाती है, तो वो किस तरह के कहलाएंगे, वो ओमनिवोर्स कहलाएंगे। सो ह्यूमन बीइंग किस कैटेगरी से आएंगे, ओमनिवोर्स से। स्टूडेंट, देयर इज एन आल्सो an important information inside the box. Do you know? So do you know insect like butterfly and mosquito have a tube like mouth part called proboscis. Proboscis.
फॉर सकिंग लिक्विड्स। अब जिस तरह से इंसेक्ट हैं, बटरफ्लाई है, मॉस्किटोज हैं, हाउस फ्लाइज हैं, उनकी जो माउथ है वो उनके आगे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिससे वो किसी भी दूसरे कोई भी जो लिक्विड्स हैं, जिस तरह से मॉस्किटोज हैं, वो ह्यूमन बींग का या किसी भी एनिमल्स का जो ब्लड है वो चूसते हैं। तो उनके सामने एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, पहले वो उससे वो उसको बाइट करते हैं, फिर उसी से वो ब्लड को चूसते हैं, सक करते हैं। तो ये जो पाइप लाइक जो स्ट्रक्चर होता है, जो उनका माउथ है, उसका जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो पार्ट है, उसको कहते हैं प्रोबोस्किस। प्रोबोस्किस। तो बहुत सारे इंसेक्ट जैसे बटरफ्लाई और मॉस्किटोज का जो आउटर पार्ट है जो माउथ का, वो कहलाता है प्रोबोस्किस, और उसकी हेल्प से वो लिक्विड को सक करते हैं, चूसते हैं। Animals such as rats, squirrels, etc. have strong and long, constantly growing incisor and no canines. तो बहुत सारे एनिमल ऐसे हैं जैसे रैट है, स्क्वेरल्स है, हैव स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग इंसीजर। उनके जो टिथ है वो इंसीजर होते हैं, सिर्फ वो कट करने के लिए हैं उनके पास, बट उनके पास कैनायन नहीं होते। कैनायन किसी चीज को टीयर करने के लिए जो यूज होते हैं, जो पॉइंटेड टीथ होते हैं, नुकीले दांत है, वो नहीं है। बट फ्रंट के जो टीथ है वो इंसीजर है, कट करने के लिए। तो बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनके पास सिर्फ इंसीजर ही होते हैं। दीज ग्नोइंग एनिमल आर कॉल्ड रोडेंट्स। तो इस तरह के जो एनिमल्स हैं उनको क्या कहा जाता है? रोडेंट कहा जाता है। ग्नोइंग, ग्नोइंग का भी मीनिंग यही है कि जिसके पास वो जो फ्रंट के इंसीजर टीथ होते हैं। तो इस तरह के इंसीजर टीथ वाले जो एनिमल्स हैं उनको क्या कहा जाएगा? रोडेंट। दे आर नोन एज rodent. So this is an important information inside the box of do you know. So student, now the time to answer. So you have to answer this. Arrange the animal given below according to their eating habits as herbivores, carnivores, omnivores in your notebook. So in your notebook you have to write herbivores, then choose the animal from that. इसमें से कुछ एनिमल को चूज करना है और हर्बीवोर्स के सामने लिखना है। फिर कार्निवोर्स, कार्निवोर्स के सामने कौन से एनिमल कार्निवोर्स हैं। फिर ओमनिवोर्स की हेडिंग डालनी है, उसके सामने लिखना है कौन से एनिमल है। तो जिस तरह से हम देखें, ईगल, ईगल किस कैटेगरी में आएगा? कार्निवोर्स। क्रो जो है हमारा कार्निवोर्स में आएगा। ईगल जो है वो कार्निवोर्स में होगा। क्रो, क्रो को आप ओमनिवोर्स में रख सकते हैं क्योंकि क्रो दोनों ही तरह की चीजें खाता है, तो ओमनिवोर्स में आ जाएगा। इस तरह से डियर, डियर को आप हर्बीवोर्स में रखेंगे। कैट, cat can be omnivores. Elephant, only grass eating animal. Goat, only grass eating animal. So elephant and goat will be herbivores. Human, human belongs to omnivores. इस तरह से आपने इसको अरेंज करना है। So student, ये आज के हमारे टॉपिक है। मैं एक बार फिर से इनको रिवाइज करवाता हूँ। Eating habits in animals. So different animals have different type of eating habits. So on the basis of their eating habits, animals are divided into three categories. The first is herbivores, only plant eating animals. Example are goat, cow, horse, rabbit, giraffe. तो ऐसे एनिमल जो सिर्फ प्लांट को खाते हैं वो हर्बीवोर्स कहलाते हैं। सेकंड टाइप जो है हमारे पास वो है कार्निवोर्स। कार्निवोर्स फ्लैश ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स, कार्निवोर्स कहलाते हैं। Example are lion, tiger, cat, eagle, wolf. These are the examples. The third category is omnivores. Some animal eat the flesh of other animals as well as plants. कुछ एक एनिमल्स ऐसे हैं जो दूसरे एनिमल्स के फ्लैश को भी खाते हैं या फिर दूसरे प्लांट्स वगैरह को भी खाते हैं, तो वो ओमनिवोर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल आर ह्यूमन बीइंग, बियर, क्रो। These are some example which belongs to the category of omnivores. So students, these are the topic for today. Now, if you are having any doubt or any difficulty, you may ask your question one by one.